Hello students, so we are back with the next topic that says modals. Now here in this particular topic we will be studying about a different kind of verb. हम एक अलग तरह के verb के बारे में पढ़ेंगे. हमने पहले कुछ verbs already पढ़ लिए थे जिसको हम main verb बोलते थे, which were eat, play, fly. So these verbs we had already studied earlier, ये हम पढ़ चुके हैं. But ये जो models होते हैं ये एक अलग तरह के verb होते हैं. And this word models, it comes from the word modalities. अब modalities का क्या मतलब है? It means expressing the mood of the speaker. Like what does the speaker want to say? वो कहना क्या चाहता है? क्या वो किसी चीज़ की possibility बताना चाहता है? क्या वो किसी की एबिलिटी बताना चाहता है? क्या वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर या फिर एक प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर बता रहा है? सो दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है. व्हाट इज द एक्चुअल मोटो ऑफ द स्पीकर बिहाइंड व्हाट ही और शी सेज. वो क्या बोल रहा है और उसका मोटिव क्या है वो बोलने का. सो दिस इज the introduction of the chapter models. Now they are also known as auxiliaries because they are just a helping verb. ये actual verb का काम नहीं करते तो ये एक supportive. auxiliary का means होता है something that supports us. तो ये एक supportive way में हमारा help करते हैं. That's why it is known as auxiliaries, or we can also say them modal auxiliaries. So they express the mood of the speaker. Now हम कैसे इन modals पे पहुँचे और कैसे हमने इसे एक different state दिया verb से, वो हम देखते हैं. Here we have verb, a separate chapter known as verb. So verb are basically of two main types. The first one is the main verb that I told you right now. जैसे मैम ने भी बताया, eat, play, jump, fly, walk, sleep, study, they are all what main verb. क्योंकि इसमें actual में जो action है that is taking place. The action is taking place. Actual में action हो रहा है. Okay? Next comes the helping verb. Helping verb वो verbs होते हैं जो actual action तो नहीं बताते but उस action का हमें either tense बताते हैं और it can be the mood of the action कि वो किस तरह से होगा या होना चाहिए. For example, helping verb, one of the famous helping verb is, am and are. They are some famous helping verb. Now what is the work of is, am, are in a sentence? जहाँ पर main verb है उस sentence में is, am, are का क्या work है? उसमें is, am, are the helping verbs. And which helping verbs? They are the primary helping verbs. अब primary helping verb का क्या motive होता है या क्यों use होते हैं? They are used to show the tense of a sentence. For example, if I say he is playing, any boy or any child वो अभी खेल रहा है and he was playing. So in both the sentences हम कैसे separate करेंगे एक दूसरे को कि ये कैसे अलग है एक दूसरे से. Because here the child is playing right now, the work is happening now, and here the child has already played in some time in the past. So here I know कि अभी की बात कर रहे हैं और इधर हम past की बात कर रहे हैं. So these are the primary helping verbs that show the tense in a sentence. Some of them are is, am, are, was, were, has, have, had, will. They are what? Helping verbs. Now this was the basic explanation or a brief explanation we can say. Main verb जो actual verbs होते हैं जहाँ action actually हो रहा है, and helping verbs are the ones जो हमें सिर्फ tense बताना चाहते हैं जब उस sentence में एक main verb present है. So they are the primary helping verbs. All this I have written here. They are the
examples of primary helping verb. Now what are modals? Here we are talking about a particular characteristic कि कुछ भी चीज़ है वो क्या पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल, क्या वो हो रहा है या वो होगा, what is the probability or the chances of that action that is going to take place, and what is the mood of the speaker. For example, a person says he can come today and same time he says he might come today or he may come today. Now we don't know what is the speaker's motive. इफ़ वी डोंट नो मॉडल्स, अगर हम मॉडल्स को नहीं जानते तो फिर हमें समझ भी नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द स्पीकर ट्राइंग टू से. अगर हमें कैन का यूज़ या कैन का मतलब नहीं पता, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिसनिंग टू समबडी. किसी को सुनने का भी क्या मतलब है, क्योंकि हमें वो बात समझ भी नहीं आएगी. सो मॉडल्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस व्हाट वी आर सेइंग, and the listener, it supports the listener to understand what we are trying to say or what we are trying to convey. So some modals are can, could, may, might, shall, should, can, could, may, might, shall, should, will, would. Now there are many more: ought to, need to, dare to, used to. They all are what? Modals. Need to, dare to, used to. They are what? Modals. Now there is one specific things about modals, that they can't be used alone. Can't be used alone. That means they need a main verb for the actual understanding of the sentence. इनको हमेशा नीड होती है एक मेन वर्ब की, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल में पता चलता है कि एक्शन क्या होगा या व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी कि वो होगा. ही कैन डू द वर्क, वो काम कर सकता है. ओके, ही मे डू द वर्क, मतलब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ऑल द मॉडल्स हियर. So right now leaving all this part here, इस part को हम ज़्यादा deep में नहीं समझेंगे because we are learning modals. So I'll write the 4 modals at a time and we'll try to learn what is the use of each modal and why do we use it in a sentence. Okay students, so now I have written 4 types of different modals: can, could, shall and should. So before studying these, let us see some points that we should remember while we are doing modals. Number 1, they are a type of helping verb in a sentence. As I already told you कि ये main verb का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ helping verb का काम करेंगे. तो ये एक तरह से helping verb होंगे एक sentence में. They are always used in the base form. एक कभी भी आपको past, present, future इनके पीछे D, ED, T नहीं दिखेगा आपको. Okay? No preposition is used just after modals. आपको कोई भी preposition in, on, under, at, to, for, by ये सब इनके just बाद में, can के बाद में to नहीं दिखेगा, will के बाद में to नहीं दिखेगा. Now there are some modals like ought to, need to, dare to, used to. Here they themselves form modals. आप ये नहीं बोलोगे कि ought के पीछे to क्यों लगा है, क्योंकि ought to एक साथ मिलकर ही एक मॉडल बना है. ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी शुड रिमेंबर कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हमेशा बेस फॉर्म में ही यूज़ किए जाएंगे और इनके जस्ट बाद में कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा. जस्ट बाद में सिर्फ क्या यूज़ होगा? मेन वर्ब. देयर विल बी अ मेन वर्ब आफ्टर देम. ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल दैट इज कैन. नाउ लेट अस सी द यूजेस ऑफ कैन. अब कैन के क्या क्या यूज होते हैं?
फर्स्ट टू शो कैपेसिटी. नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? कोई भी पर्सन है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कोई भी काम करने की, दैट इज कैपेसिटी. एबिलिटी, नाउ देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड एबिलिटी. कैपेसिटी जो होता है वो हम एज अ फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, अपना बॉडी वाइज हम कुछ भी काम करने के केपेबल हैं. एबिलिटी जो है वो हमारे अंदर होती है. लाइक इफ़ वी आर इंटेलेक्चुअली फास्ट, हमारा दिमाग जल्दी काम करता है, अगर हम बोल अच्छे से सकते हैं, इफ़ वी कैन स्पीक फ्लुएंटली, तो जो भी चीज़ें हमारे अंदर हैं दैट आर वी कैन से इनविजिबल. ओके, एंड जो कैपेसिटी वाली चीज़ें होती हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, अकॉर्डिंग टू द फिजिक. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी, कि कुछ भी चीज़ है जो फ्यूचर में होने वाली है या हो सकती है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो होगी. सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ही कैन रन फास्ट. अब रनिंग जो होती है वो हमारे हैंड्स और लेग्स की हेल्प से होती है, मेनली लेग्स से. सो इट इंक्लूड्स अ फिजिकल बॉडी पार्ट. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैपेसिटी. ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो ईजिली कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, वो बहुत ईजिली फ्लुएंटली बोल लेता है. सो दैट इज़ द एबिलिटी, कि उसके आप देख नहीं सकते हो उस बॉडी पार्ट को, बट व्हेन ही स्पीक्स यू कैन सी दैट और यू कैन गेस इट. So first one is the example of capacity, then is ability. Then the next one is he can reach any time. वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है. Now this is possibility, कि वो अभी भी आ जाए या फिर वो थोड़ी देर बाद भी आ जाए. Okay, we don't know about it yet. Now informal request, this is again the use of can. What were the other three? Capacity, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी शो करने का. किसी भी पर्सन की कैपेसिटी और एबिलिटी शो करना है, फ्यूचर का पॉसिबिलिटी शो करना है, फॉर दैट पर्पस वी यूज़ कैन. और जब हमें किसी से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट लेना है, सिर्फ हम पूछने के लिए पूछ रहे हैं, हम आंसर का वेट भी नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि कैन आई बोरो योर पेन, तो वो मना करेगा तो भी हम ले लेते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ आस्किंग. ओके, हमारा मोटिव क्या है? उनसे वो चीज़ लेना. सो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन आई कम इन, यू डोंट आस्क अ टीचर कैन आई कम इन मैम, नो, यू सेज मे आई कम इन, बिकॉज मे सीम्स अ लिटिल पोलाइट. वाई? बिकॉज वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ आता है. बट जब हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो हम कैन यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज इट शोज आस कि हम सिर्फ पूछ रहे हैं, दैट द पर्सन डज नॉट फील अनकंफर्टेबल, कि बिना पूछे ले लिया. फॉर दैट सेक वी आर जस्ट आस्किंग, कैजुअली वी आर आस्किंग. देन द नेक्स्ट वन इज कुड. नाउ कुड, एज वी ऑलरेडी नो, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. ये कैन का पास्ट टेंस होता है, पास्ट फॉर्म होता है. एंड द नेक्स्ट यूज इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमें बहुत पोलाइटली किसी से कोई फेवर चाहिए या कोई काम चाहिए. फर्स्ट एग्जाम्पल पास्ट टेंस का है, यू कुड हैव टेकन अ टैक्सी देन. देन वी ऑलवेज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस, तो उस टाइम पर तुमको टैक्सी ले लेना चाहिए था. सो हियर इट इज मेकिंग सेंस. अगर अभी की बात कर रहे हैं तो वी कैन सजेस्ट समवन, यू कैन टेक अ टैक्सी, तुम एक टैक्सी ले सकते हो. ओके, देन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वी हैव एन एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू स्कूल, क्या तुम प्लीज मुझे स्कूल छोड़ सकते हो. सो हियर आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ फेवर. ओके, सो दीज टू आर द यूजेस ऑफ कुड. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू शैल. सो शैल, एज वी ऑलरेडी स्टडी टेंसेस, तो हमें पता है कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, आई और वी के साथ यूज़ होता है फ्यूचर में. बट जब हम इसका मॉडल्स में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है. हियर वी विल नॉट यूज़ इट फॉर फर्स्ट पर्सन. मॉडल्स में शैल जो है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है. और क्यों होता है? अगर हम किसी से किसी काम को करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी को थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, इफ़ यू आर इंस्ट्रक्टिंग, if the teacher has instructed the students or children, she will use the word of shall. Okay, we'll see an example for all of them. Determination, अगर मुझे कोई चीज़ मैं determined हूँ कि ये होगा ही होगा, for that we use shall. Request in interrogation, अगर मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ request करते हुए, okay, shall I come first, shall I please take your seat,
So I am requesting somebody in interrogation. Let us see the first example. She shall help you in this. Now here shall is used with she, not the first person and not with I or we, it's with she. Now what does shall stands for here? It stands for a promise, कि उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि she shall help you, वो तुमको हेल्प करेगी इस चीज़ में. Okay, this is for promise. Behave yourself or you shall be punished. Now here either I am instructing a child, or if I say behave yourself or I shall kill you or you shall be killed. We will write it in a simple way. Behave yourself or you shall be killed. So here I am not actually trying to kill the person, I am just मेकिंग अ थ्रेट टू द पर्सन कि बिहेव योरसेल्फ, अच्छे से पेश आइए और यू शैल बी किल्ड, या आप मार दिए जाओगे. नाउ ऐसा यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. आई एम थ्रेटनिंग दैट पर्सन कि यू हैव टू, यू नीड टू बिहेव प्रॉपरली और यू शैल बी किल्ड. दिस इज अ थ्रेट. Then student shall use only blue ink. When you go and give a exam, अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है student shall write only in blue or black ink. Why? वो आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं shall लिखा है, बच्चा समझ ले कि shall लिखा है तो ठीक है कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो हम ग्रीन पेन से रेड पेन से लिख लें, इट्स ओके. नो इट्स नॉट. अगर आपको वहाँ पर shall दिखता है तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको that you are required to write only in blue pen or in black pen, जो भी आपको instruction मिला है. Then Harry shall complete it by tomorrow. Now here ऐसा नहीं है कि हैरी कर लेगा या नहीं करेगा. No, Harry has a determination कि he shall complete it tomorrow. वो कल complete कर ही लेगा इस particular assignment को या project को. And then last one is shall I come first? Shall I please take your seat? So I am making a request in interrogation कि सामने वाला जो है वो मुझे मतलब मेरे पोलाइटनेस की वजह से प्लीज़ हाँ कर दे, मना नहीं करे. So we are asking shall I come first? क्या मैं पहले आ जाऊँ प्लीज़? So here please is automatically showing is shown by the word shall. Shall में automatically हमारा बहुत पोलाइटनेस, हमारा बहुत रिक्वेस्ट आ गया है कि मुझे जाने दीजिए प्लीज़. Shall I please go or shall I please take your seat? क्या मैं प्लीज़ आपका सीट ले लूँ? So here I am making a request in interrogation. Now this was the use of shall. Next we move on to should. हम should कब कब use करते हैं? First should is also the past of shall and it is also used for giving general advice. जब भी आपको कोई बोलता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, you should clean your room, you should tidy your room, you should clean your nails, you should bath daily. So वो क्या कर रहे हैं? वो हमें advice दे रहे हैं. So you should obey your parents or you should go to bed now. In both the sentences should word जो है वो आपको एक advice दे रहा है कि हाँ आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, अभी आपका ये काम करने का सही टाइम है. So when we are advising we use the word should. Now in this video we'll learn till here only, children. In the next video I will show you the entire examples along with the modals, okay, and their uses. Till then you revise all of them and practice yourself. All the best. Bye. Have a good day.